خطرات بڑھنے لگے، آج کورونا وائرس کے 78 کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 136 ہو گئی۔ سکھر میں 76، کراچی میں 26، سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد 103۔ خیبر پختونخوا سے بھی پہلی مرتبہ کورونا کیسز کی تصدیق۔ ڈی آئی خان قرنطینہ سینٹر میں 15 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ کورونا سے متاثرہ زیادہ تر تعداد زائرین کی ہے۔ تفتان سرحد پر قرنطینہ کے نام پر مذاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھڑک اٹھے، کہا تفتان میں تمام مسافروں کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ ہم اپنے وسائل میں رہ کر ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں، عوام رضاکارانہ طور پر محدود رہیں۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا نے بھی تفتان بارڈر پر عدم سہولیات کا معاملہ اٹھا دیا۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا زائرین کی تفتان بارڈر پر صحیح تشخیص نہیں کی گئی۔ قرنطینہ کی سہولیات میں کوتاہی کی وجہ سے کیسز سامنے آئے۔ تمام افراد کو علیحدہ علیحدہ قرنطینہ میں رکھا جانا چاہیے تھا۔ کورونا کو کیسے روکیں؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی فار کووڈ-19 کی آج بھی بیٹھک لگی۔ چاروں وزراء اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ بین الصوبائی نقل و حرکت محدود کی جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی تجویز۔ وفاق نے مزید مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حکومتی سطح پر ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات 15 جون سے ہوں گے۔ انٹر کا پہلا پرچہ 6 جولائی کو ہوگا۔ پہلی سے 8ویں کے امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا کالجز میں داخلوں کا آغاز 15 جولائی سے ہوگا۔ 9ویں جماعت کے نتائج کے مطابق داخلہ ہوگا۔ والدین ایڈوانس نہ دیں، ماہانہ بنیاد پر اسکول فی ادا کریں۔ کورونا کے باعث کراچی میں لاک ڈاؤن کی افواہیں سوشل میڈیا پر تبصرے ہونے لگے۔ عوام خوفزدہ، احتیاطی تدابیر نظر انداز، لوگ امڈ آئے، بازاروں میں رش، عوام احتیاط کریں، کرنسی کے استعمال کے بعد فوری ہاتھ دھو لیں۔ ایک سو 61 ممالک کورونا وائرس کی لپیٹ میں، دنیا بھر میں 1,74,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ہلاکتیں 6,600 سے تجاوز کر گئیں۔ وائرس نے یورپ میں پنجے گاڑ لیے، اٹلی میں 1800 سے زائد ہلاک۔ 19 افریقی ممالک میں بھی کورونا کے وار، سوڈان، سینیگال، نائجیریا، گھانا اور گبون متاثر۔ جنوبی افریقہ میں ایمرجنسی نافذ، کینیا نے سرحدیں بند کر دیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں ہلاکتیں بڑھنے لگیں، چین میں صورتحال بہتر۔ کورونا وائرس سے معیشت بیمار ہونے لگی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی مندی۔ 100 انڈیکس میں 2375 پوائنٹس کی کمی، 33,684 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر ₹1.87 سستا، ₹157.10 کا ہو گیا۔ حکومت IMF سے اہم رعایت حاصل کرنے میں کامیاب، کورونا پر اٹھنے والے اخراجات مالی خسارے میں شامل نہیں ہوں گے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی تصدیق، کہا کوشش ہوگی اشیاء خورنوش کی قلت یا قیمتوں میں اضافہ اور بے روزگاری کا خطرہ پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس ملک بھر میں سر اٹھانے لگا ہے۔ آج بھی 78 کیسز نئے سامنے آ گئے، سب سے زیادہ 63 کیسز سکھر میں سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سندھ میں متاثرین کی تعداد 103 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کے 15 کیسز سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں وائرس سے متاثرین کی تعداد 136 ہو چکی ہے۔ خطرناک وائرس کورونا کا روگ، ملک میں بتدریج بڑھنے لگا خوف۔ 24 گھنٹوں میں 75 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے۔ صرف سکھر میں ہی 63 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ تمام زائرین تفتان سے آئے تھے۔ نئے کیسز کے بعد سندھ میں متاثرین کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا بھی کورونا کے وار سے نہ بچ سکا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 15 افراد میں کورونا وائرس پایا گیا۔ تمام افراد تفتان کے قرنطینہ میں 14 روز مکمل کرنے کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ اب تک بلوچستان میں 10، اسلام آباد میں 4، گلگت بلتستان میں 3 اور لاہور میں 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ سندھ کے 2 اور اسلام آباد کا 1 مریض صحت یاب ہونے کے بعد اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔
कोरोना वायरस के नए मरीज तफ्तान में कायम करंतना में 14 रोज गुजार चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें वायरस की तस्दीक हुई है। सूरत हाल ने हुकूमती इक़दामात पर सवालात उठा दिए हैं। पाक ईरान सरहद पर नाकिस इंतजामात, करंतिनिया के नाम पर हुकूमत का मजाक। तफ्तान मुल्क में कोरोना वायरस की जड़ बन गया। ईरान से हजारों पाकिस्तानी जायरीन वापस आए। हुकूमत ने जायरीन को घरों को भेजने के बजाय तफ्तान में ठहराया। किसी को आइसोलेट किया, ना ही चेकअप का कोई इंतजाम किया। यहाँ न कोई दवाई मिल रही है। डॉक्टरों से जब हम बात करते हैं वो बोलते हैं कि आप खुद मंगवा ले कोयटा से। हम कहाँ से मंगवा ले, हमें बाहर जाने भी नहीं दे रही। ना कोई प्रॉपर चेकिंग हमारी होती है, ना कोई स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। बस वहाँ पर खामखा में यहाँ पर ठहराया गया है। एक एक कमरे में दर्जनों लोगों को रखा गया। बच्चे साथ खेलते नजर आए। जायरीन हुकूमत पर बरसते रहे। यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, वाशरूम नहीं है, खाने पीने का निज़ाम सारा कुछ मिक्स किया हुआ है इन लोगों ने, और अनहाइजीनिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो है कोरोना के फैलने के बहुत खदशात हैं। हुकूमती गैर संजीदगी का इतना आलम था कि करंतिनिया में बाजार तक लग गया, लेकिन किसी के कान पर जू तक न रेंगी। हुकूमत के नाकिस इंतजामात के बायस यहाँ से सूबों में पहुँचने वाले 50% जायरीन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस इसका सबब बन चुके हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे कुछ करते नजर नहीं आते। तफ्तान की तरह कोयटा में कायम करंतिनिया की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। 500 ज़ायरीन मौजूद हैं और मजीद की आमद जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद से। जी मुजीब अहमद। जी, कोयटा के मियागुंडी कैंप में 500 से ज़ायद ज़ायरीन को रखा गया है और इनकी स्क्रीनिंग की गई है थर्मल गन से। इनके बाकायदा कोई टेस्ट नहीं हुए, इनके ब्लड टेस्ट नहीं हुए, जिससे मालूम हो सके कि इनको कोरोना है या नहीं है। जो मुश्तबा पाए गए हैं 40 से 50 लोग, उनको आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। अब 2500 के करीब लोग तफ्तान में बैठे हैं कैंप्स में। उनको भी आइंदा 2 रोज के दौरान कोयटा इसी कैंप में लाया जाएगा। पोजीशन ये होगी कि जो लोग 14 रोज गुजार चुके हैं वो घरों को जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो लोग आके मिलेंगे उनको 2 रोज हुए होंगे या 3 रोज हुए होंगे। अगर उसमें से कोई इन्फेक्टेड हुआ और इन लोगों को लग गई तो ये अपने घरों को जाकर और ज्यादा फैलाएंगे। अगर इनको शहरों तक फैलाया गया, इनको इनके शहरों में भेजा गया, चाहे वो केपी, सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान हो, तो मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये कोरोना की नर्सरियां फिर जगह जगह कायम हो जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तफ्तान में कोई करंतना नहीं था। चारपाई से चारपाई मिली हुई थी, सब एक ही साथ रह रहे थे। सखर में कायम करंतना में बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एक फ्लैट में फकत एक शख्स को ही रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के केसेस अभी और बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफ्तान में करंतना सेंटर के इंतजामात पर उंगलियां उठा दी। तफ्तान में हमें बताया गया कि सिंध से 853 जायरीन हैं। क्वारंटीन का मतलब ये है कि एक बंदा एक कमरे के अंदर हो। सभी ने देखा तो वो तो सब साथ बैठे हैं, सब साथ चारपाई से चारपाई लगी हुई है, मिलजुल रहे हैं। तो ये क्वारंटीन नहीं था, ये तो खुदा ना खास्ता एक को है तो उन सबको लगना था उससे। मुराद अली शाह का कहना था कि सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध बिल्कुल तैयार है। मैं रोजाना एक मीटिंग कर रहा था। इस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ये फैसला किया कि जिस दिन ये ज़ायरीन तफ्तान से सिंध आएंगे, हम इन सबको क्वारंटीन करेंगे 14 दिन के लिए। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि बिला जरूरत बाहर ना निकलें। आप नहीं चाहते बीमार होना तो आप और बाकी सबको कहें कि गैर जरूरी बाहर जाना छोड़ दें और घरों में बंद हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बीमारी से महफूज रहें। तफ्तान बॉर्डर पर सूरत हाल आइडियल नहीं। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने एतराफ़ कर लिया। कहा कि इसके अलावा कोई और हल था भी नहीं। अगर सिंध हुकूमत ने ईरान से आने वाले लोगों को बेहतर माहौल में करंतिनिया किया तो ये अच्छी बात है, इससे फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। हमारे 6000 से ज्यादा ज़ायरीन ईरान में गए हुए थे। तमाम के तमाम जो थे ज्यादा गैर महफूज थे ईरान में। बड़ी सोच समझ के बाद ये फैसला किया गया, उनको बैचेस में हम लेकर आए। तफ्तान एक बड़ी दूर अफ्तादा और बड़ी मुश्किल जगह है। वहाँ पे हमने बहुत मेहनत के साथ एक क्वारंटाइन बनाया, वहाँ पे लोग रहे। वहाँ से फिर लोगों ने जब 14 दिन मुकम्मल किए तो उनको आगे लेकर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ, वो कोई आइडियल जगह नहीं थी उनको रखने की, लेकिन इसके अलावा कोई चॉइसेस भी नहीं।
नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद उनको सिस्टम के तहत वहाँ से निकाला। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला साहब ने भी ये बात इस अंदाज में की होगी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। ये जो फैसला किया वहाँ पे उनको दोबारा क्वारंटाइन करने का बहुत अच्छा फैसला है, उनके टेस्ट किए बहुत अच्छा फैसला है। हमें उसमें पॉजिटिव मिल गए, अच्छी बात है हमें मिल गए। अगर ये ना मिलते तो ये इसी तरह अपने घरों में चले जाते और बीमारी फैलाते। हमें तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन 15 कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में केसेस कैसे पॉजिटिव निकल आए, ये जानने के लिए आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन ने सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा के साथ गुफ्तगू की है। आपको दिखाते हैं। जी, दुनिया भर में कोरोना के वार जारी है। हमारी पाकिस्तान में भी कोरोना के कई केसेस आ गए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब। उनसे पूछेंगे कि ये कैसे ये अचानक 15 केसेस पॉजिटिव निकल आए। जी, जो केसेस थे आज हमारे पास 19 लोग बलूचिस्तान से पहुँचे, ताफ्तान से, जो ईरान गए थे। 14 दिन उन्होंने ताफ्तान में गुजारे और वो हमारे पास आए। हमने डिसाइड किया, जैसे बाकी सूबों ने भी डिसाइड किया, कि उनको हमने डेरा